نون لیگ کام چلیں ان سے معقول دیں. السلام علیکم رانا مشہور صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان صاحب ٹھیک ٹھاک. رانا مشہور صاحب یہ جوتے مارے جا رہے ہیں عورتوں کو اور ٹرکوں کے اوپر ڈنڈے پتھر, یہ کیا ہے, یہ کون سی سیاست ہے؟ خان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس لانگ مارچ کو تحفظ دینا, اس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم اپنا کام یہ احسن طریقے سے کر رہے ہیں. یہاں پر ہوا یہ ہے کہ گجرانوالہ والوں نے رانا صاحب ایک منٹ پہلے بات تو مکمل ہونے دیں, بات پہلے مکمل ہونے دیں, پھر مجھے ذرا ایک چیز پوری کر لینے دیں, پھر میں آپ کی بات سن لیتا ہوں. بولیے ہم آپ کا موقف لینا چاہتے ہیں. اس کے اندر جو گجرانوالہ کے اندر یہ ہمارے ایم پی ہیں, ان کا دفتر یہاں پر سال سے ہے. یہاں پر پارٹی کے بینرز بھی لگے ہوئے تھے, پارٹی قیادت کی تصاویر لگی ہوئی تھی. ان کو ان کے ورکرز نے جب پھاڑا ہے تو وہاں پر جو لوگ تھے ان میں اشتعال پیدا ہوا ہے, جو غلط بات ہے. اب ہم نے یہ کیا ہے کہ مطلب جو کچھ یہاں پر ہوا ہے, ہم آپ کو سب سے زیادہ بینر عمران مناظر بھی ہیں, ہم وہ بھی دکھانا چاہیں گے رانا صاحب کو. رانا صاحب یہ مناظر بھی آپ دیکھتے رہیں. دوسرا لاہور میں سب سے زیادہ بینر لگے تھے میاں صاحبان کے, یہاں پہ تو کوئی بینر نہیں اٹھایا انہوں نے, کوئی یہاں پہ کسی ایک بینر کو ایک پوسٹر کو آپ کے نقصان نہیں پہنچایا, اور وہاں بھی کوئی ایسی فوٹیج نہیں ہے. یہ ایک ایکسکیوز ہو سکتا ہے وہاں کی انتظامیہ کی جانب سے, لیکن آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوئی. اور پی ٹی آئی نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. آپ کے لوگوں نے ان کو جوتے مارے ہیں, آپ کے لوگوں نے ان کو پتھر مارے ہیں, ان کو گالیاں دی ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. فرمائیے. خان صاحب اس وقت 4 لڑکے ابھی ٹی وی پہ ہی دکھائے جا رہے تھے پی ایم ایل این کے, جن کے سر پھٹے ہوئے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میری عرض سنتے جائیے گا, مطلب ٹی وی کے اوپر ہی جو چل رہا ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, مطلب یہ بالکل ایک لیپس ہوا ہے. رانا صاحب اگر آپ کی ذمہ داری ہے تو ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے پولیس والوں کو ہم آپ کو مناظر دکھا سکتے ہیں رانا صاحب, اگر ہمارے پروڈیوسر مناظر دکھائیں جس میں ایک پولیس اہلکار خود پتھراؤ کر رہا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر. یہ کیا ہے, یہ پولیس والے کیوں مار رہے ہیں, اور پہلا پتھر پولیس والے نے مارا ہے 1:03 پہ. یہ اب آپ کو جو ادھر کا ریٹورک ہے نا, وہ یہ ہے کہ ان کے کارکنوں نے پہلے اس دفتر کے اوپر حملہ کیا ہے. اب اگلی بات سن لیں کہ میں نے وہاں پہ موجود جتنے پولیس افسران ہیں, آر پی او سے سی پی او سے, سب کو کہہ کے ہم نے کہا کہ میک شور کریں جہاں پر اب پہلے پولیس اگر تھی اس کو ڈبل کر دیں, جہاں پر اگر ان کے ساتھ اس روٹ کے اوپر جتنی پولیس یہ حساس ڈبل کر دیں موجود تھی پہلے سے کہ یہاں پہ حملہ ہوگا خدا نہ خواستہ. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اگر ایسی حملے کی کوئی کیوں نہیں کیا رانا صاحب؟ ایسے حملے کی, اس طرح کے حملے کی نہیں, دہشت گردی کی تھی. ہم نے اس کے اوپر پوری کارڈن آف بھی کی. یہاں پہ عمران میں یہ بھی بتاتی چلوں رانا صاحب کو کہ یہاں کے جو مقامی ایم پی ہیں, عمران خان بٹ ان کا نام ہے, اور انہوں نے رات سے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ڈیرا ڈالا ہوا تھا, کارکنان ان کے ساتھ موجود تھے, اور پوری یہ پلاننگ تھی ہمارے رپورٹرز کے مطابق کہ صبح جب یہاں سے پی ٹی آئی کا قافلہ گزرے گا تو اس پر پتھراؤ کیا جائے گا. آپ اس پہ کیا کہیں گے رانا صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط قسم کی بات ہے, کیونکہ ہم نے اپنے تمام کیا کر رہے تھے رانا صاحب, یہ ذرا تھوڑا سا اگر میری ذرا ایک منٹ, ہم نے اپنے تمام ایم پی ایز, میں نے تمام عہدے داران کو یہ کہا ہوا ہے کہ انہوں نے اس راستے پہ نہیں آنا, بلکہ اب اس انسیڈنٹ کے بعد ہم نے اب آگے یہ ساتھ ہی رہے گا. آپ کا ہم موقف لے رہے ہیں حکومت کی جانب سے. شیریں مزاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان تحریک انصاف, ان سے لیتے ہیں. شیریں مزاری صاحبہ, اس وقت جو یہ صورتحال گجرانوالہ میں ہے, آپ بتائیے گا کہ آپ کیا کہتی ہیں, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, اور آپ کی اب کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ اور شیریں مزاری صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ رانا مشہود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کا دفتر توڑا ہے, سب سے پہلے آپ نے ان کے دفتر پہ حملہ کیا, ان کے پوسٹر اور بینر پھاڑے ہیں میاں صاحبان کے, دیٹس وائی وہ لوگ غصے میں آئے, انہوں نے حملہ کیا آپ پہ. رانا مشہود صاحب کو کہیں کہ یہ جو دوغلا پن ہے نا حکومت کا, پہلے اٹیک کرواتے ہیں, پولیس کی وین کے اوپر چڑھ کے پتھراؤ اور فائرنگ ہوئی ہے, اور ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنے ایم این ایز کو کہہ دیا کہ اس راستے سے نہ گزرے. راستے سے کیا گزریں گے ہم, انہوں نے ہمارا جو پیچھے قافلہ آ رہا تھا ان کو دھمکی دے کے روکا ہے. اور میں آپ کے چینل سے کہہ رہی ہوں سارے پی ٹی آئی ورکرز کو کہ ہر حال میں پہنچے, ان کے دباؤ میں مت آئے. جن کو انہوں نے گجرانوالے میں روکا ہے وہ واپس چلیں, اور اگر کچھ ہوگا تو یہ گلو بٹ کی جو حکومت ہے شریفوں کی. آپ کے کتنے لوگ زخمی ہوئے, نقصان کتنا ہوا ہے شیریں مزاری صاحب؟ آپ ذرا یہ رانا صاحب کو بتا دیں تاکہ انہیں پتہ چلے نقصان کتنا ہوا ہے. ہمارے 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں جن کی تصویریں بھی چل چکی ہیں میڈیا پہ, اور اس کے علاوہ ہماری گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں. اور انہوں نے ہمارے جو لیڈر, انہوں نے زخمی ہونے کے بعد نون لیگ جوائن کر لی ہے, رانا صاحب کہہ رہے ہیں.
राणा साहब कह रहे हैं उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली जख्मी होने के बाद। मजाक लगता है कि नहायत बेहुदा मजाक कर रहे हैं इस वक्त, हमारे वर्कर्स को मार रहे हैं और मजाक। साहब आप मेरे पे क्यों उनका गुस्सा निकलवा रहे हैं? ये कह रही है कि 4 मकामात पे है उनके काफिले को, उनके ऊपर पथराव किया गया, उनके 4 अफराद जो वो जख्मी हुए, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि इस तरह का वाकया नहीं होना चाहिए था, लेकिन जहां पर इनके पीटीआई के कारकुनों को भी चाहिए, सुन तो लें, पीटीआई के कारकुनों को भी पथराव कर रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं होना नहीं चाहिए। अब मोहतरमा हुकूमत है पंजाब की, मोहतरमा हमने पुलिस भी ज्यादा कर दी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है, मैं यही कह रहा हूँ, ये जिम्मेदारी है, इसके ऊपर हमने पुलिस भी ज्यादा कर दी है, लेकिन मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो वहां पे कारकुन है वो अमन का दामन हाथ से ना छोड़े, वो इस तरह बैनर्स को ना फाड़े, इस तरह बैनर्स तो राणा साहब कोई फुटेज हो बैनर फाड़ने की, आप ही मोबाइल से वहां किसी को कहें हमें दे दें कि बैनर फाड़े हैं, मैं कहता हूँ जी वहाँ के फाड़े हैं, वो तो हमें नजर आ जाएगा कहीं ना कहीं। राणा साहब अगर आप इस वक्त मनाज़िर देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर तो प्लीज देखिए, इस वक्त जो कारकुनान दिखाई दे रहे हैं हमें सड़कों पर जूते उठाए हुए, पत्थर उठाए हुए, वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान है और उन्हीं की जानिब से सब कुछ हुआ है। बजाय इसके कि आप हुकूमत की तरफ से ये कहें कि ये गलत हो रहा है, आप इसको डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, देखें, 2 चीजें हैं। पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस हमने ज्यादा कर दी है, हमने अपने कारकुनों को, अब इस वक्त वहां पे कोई कारकुन नहीं है, मैंने फौरी तौर पे राब्ता करके उनको कहा कि और आगे रूट के ऊपर भी कह दिया कि कहीं पे अगर अब बैनर उतरते भी हैं, मैं कहता हूं एक्सट्रीम की बात करते हैं ना, अगर बैनर उतरते भी हैं तो फिर भी हमारी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको कहा गया कि उन्होंने कहीं पे रिएक्ट नहीं करना। और दूसरी बात, पुलिस को हमने आगे के इलाके भी तो आ रहे हैं ना, आगे भी तो गखड़ का इलाका आना है, वजीराबाद का इलाका आना है, वो भी मुस्लिम लीग नून का है, तो वहाँ क्या करेंगे आप? वहाँ पहले से यकीन नहीं करवाएं कि वहाँ पर पुलिस खड़ी करेंगे आप? पिंडी तक कुछ नहीं होगा, ये यकीन दिलवाएं आप। तो उससे पहले जब काफिला गुजरेगा वहाँ पर पुलिस खड़ी होगी। एमपीए एमएनए से, पुलिस से, इंतजामिया से सबको कह दिया कि इस रूट के ऊपर जो है ना आप अपनी शिफ्टें भी डबल कर दें, आप सारा कंसंट्रेट इस पे करें, इंशाल्लाह ताला कोई वाकया इस तरह का हम आगे नहीं होने देंगे। एक चीज और, आप ये यकीन दिला रहे हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन मुझे जरा ये बताएं कि जरदारी साहब के तो बैनर और पोस्टर फाड़ के उनको आग लगा दी थी आप लोगों ने, पैरों के नीचे उनको रोंदा था, गालियां दी थी, आपकी क़यादत ने क्या कुछ कहा था, तो पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने तो आपको नहीं मारा, ना आपको डंडे मारे, ना आपको जूते मारे, कुछ नहीं मारा आपको। खान साहब आप मसला डिफ्यूज कराना चाहते हैं या और बढ़ाना चाहते हैं? मैं तो यही तक पहुंचना चाहते हैं कि ये किसने जूते पड़वाए हैं, पता तो चले। नहीं, देखें, वर्कर का जो, अब आपको मैं फिर अगर आपने सुनना ना तो 1 मिनट मुझे सुन लीजिएगा। पीपल्स पार्टी वाले तो डंडे बहुत अच्छे मारते हैं, खाते भी हैं वो, लेकिन उन्होंने आपको नहीं मारा, तो वो उनके पीछे क्या था? 1 मिनट मेरी बात अब सुन लीजिएगा। ये जो लॉन्ग मार्च है ना जी, ये लॉन्ग मार्च इस वक्त जितनी तादाद इसके अंदर है ये नाकाम हो चुका हुआ है, इसके ऊपर लोगों ने अदम एतमाद कर दिया हुआ है और ये बौखलाहट में पूरी कोशिश है कि ये नाकाम हो जाए और स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे लगता है कि लोगों को आगे जाने ही ना दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो आपके कारकुनान है वहाँ पे वो तो आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं काफिले को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक कारकुन अब वहां पर नहीं है इस वक्त का प्रेजेंट सिचुएशन जो है। राणा साहब आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आगे आगे जहां काफिला पहुंचेगा अगर कोई कशीदगी होती है तो उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, आप जिम्मेदारी लेते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर कोई शर पसंद आके जहां पर हमने कई दिनों से कह रहे हैं कि काम करें, ये बिल्कुल इसके अंदर ये हमारे एमपीए के दफ्तर का मसला था, इसमें पार्टी कारकुन है, आगे अगर कोई शर पसंद आता है जी, शर पसंद अनासर को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? कर रही है ना हुकूमत ने। अच्छा ठीक है, श्री मदारी साहब वो कह रहे हैं कि हम कंट्रोल करेंगे और इस्लामाबाद तक कुछ नहीं होगा। और दूसरा, इमरान खान साहब ने फरमाया कि मैं पर्चा शहबाज शरीफ साहब पे करवाऊंगा, वो क्यों? क्योंकि वो उनको तो पता ही नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है, चीफ मिनिस्टर उन्हीं पे पर्चा कटेगा। अब इनको ना माजरत के साथ छींक भी आती है ना, तभी वो हमारे ऊपर डाल देते हैं। माशाल्लाह शेरी मजारी साहबा, आप इतनी समझदार खातून है। बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ आप इतनी समझदार खातून है, आप थोड़ा सा इसके अंदर कार ये रखें। अच्छा राणा साहब मेरा एक सवाल है आपसे, राणा साहब मेरा एक सवाल है आपसे कि पहले तो स्ट्रेटेजी ये थी हुकूमत की कि लाहौर में रोका जाएगा पीटीआई को, उसके बाद नहीं रोका गया, वहां से तो जाने दिया गया, क्या आपकी प्लानिंग चेंज हो गई है कि आगे जाके रोका जाएगा? अब जो कुछ गुजरांवाला में हो रहा है वो तो ऐसा लगता है कि प्लानिंग के तहत हो रहा है। देखें, ये एक जो इंसिडेंट हुआ है, अब हम कोशिश पूरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये हमारी रिजॉल्व है, आगे पूरे रूट पे ये नहीं होगा।
और इस वक्त हम इससे पहले देख चुके हैं जो कुछ सानिया लाहौर, सानिया मॉडल टाउन जो कुछ हुआ है, मुर्तजा सानिया मॉडल टाउन जो हुआ है राना साहब, उसमें हम देख चुके हैं। बाद में वजीर आला साहब कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला, पूरा दिन पूरी रात गुजर जाती है, उनको पता नहीं चलता। तो खुदा ना खास्ता अगर यहाँ कुछ हो जाता है उसके बाद हुकूमत कहती है कि हमें तो पता ही नहीं था, तो ये तो सूरत हाल कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। कोई नोटिस लिया जाए, वजीर आला साहब नोटिस लें और यहाँ पे फौरी तौर पे ले ली है। फौरी तौर पे पुलिस को उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं। फौरी तौर पर उन्होंने अपील कर दी है अपने वर्करों से कि पुरअमन रहें। फौरी तौर पर उन्होंने जो लोग जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है उसकी उन्होंने रिपोर्ट मंगा ली है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप इस तरह करके निकलते हैं और जब ये सारा कुछ होता है, इसके अंदर हमारी पूरी हत्युल मकदूर कोशिश है कि हम इन तमाम चीजों को कंट्रोल करें। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हम इसको पूरा कर रहे हैं। ये जो एक साहब आप हमारे साथ हैं, आपने क्या रूट नहीं बताया था इन्हें कि किस किस रूट से होकर कहां से गुजर कर हम जाएंगे? अब गुजरावाला के 3 रास्ते हैं, 2 बाईपास हैं, एक मेन सिटी। आप मेन सिटी से जा रहे हैं, आपने रास्ता नहीं बताया था ताकि ये पहले से इंतजाम करके रखते, मॉब को कंट्रोल कर लेते। मॉब तो इन्होंने जब खुद भेजी है तो कंट्रोल क्या करते? पुलिस की हिफाजत थी उस मॉब को। चलो आगे, अभी शाहीना के बाद आप समनाबाद से गुजर के मेन रोड पे जाएंगे और गखड़ की जानिब जा रहे हैं। आप जरा इन्हें रास्ता तो भेजें, अपना डिटेल तो बताएं कि किस किस रास्ते से होकर जाएंगे। राना साहब कह रहे हैं कि अब आइंदा जो है वो आगे की तरफ तसादुम नहीं होगा, आगे पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। क्यों राना साहब? नहीं, सिक्योरिटी भी दी जाएगी और हम इसको इंशाल्लाह ताला यकीनी भी बनाएंगे। और हम अपने, मैं एक MPA MNA हमारे जो ओहदेदारान हैं उनसे मैं खुद राब्ते कर रहा हूं कि आप आज के दिन इस रूट के ऊपर ना किसी वर्कर को आने दें, ना किसी और करने दें। हमारे जिम्मेदार लोग हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वाकया जो हुआ, यकीन करें कि जो मुझे रिपोर्ट्स हैं, क्या हुआ हमारे लीडर की बस पे पथराव और फायरिंग हुई है और ये थोड़ा सा वाकया है। फायरिंग जो है ना, फायरिंग को कोई भी फायरिंग को करें आप लोग। अच्छा राना मशहूद साहब, आप वजीर कानून पंजाब हैं, क्या आपका इस वक्त फर्ज नहीं बनता कि आप चेक करें इस वक्त इमरान खान साहब से कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, उनको ये यकीन दहानी। शीरी मजारी साहिबा, मैं यही इस वक्त रिक्वेस्ट कर रही हूँ राना साहब से कि वजीर कानून की हैसियत से क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस वक्त वो चेक करें और इमरान खान साहब से बात करें, उनको यकीन दहानी दिलाएं इस बात की, और ये यकीन दहानी भी हमें कराएं कि अब ये काफिला आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। मैंने अभी आप RPO और मैंने CPO दोनों को कहा है कि दोनों वहां पर जाएं। वहां पर जो लैप्स नजर आता है इन लोगों को, इन लीडर्स को, उसको वो बताएं कि जी यहाँ पर हमें ये लैप्स नजर आया है। और इसके ऊपर फौरी तौर पे, मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद आपको वो रजिस्टर नहीं हुआ, मैंने कहा था कि मैंने पूरे जिले की पुलिस को कहा कि बाकी जगहों से आकर इस रूट के ऊपर जो है इसको यकीनी बनाएं कि अब कोई इस तरह का अल्लाह ना करे कि इंसिडेंट दोबारा हो। मैंने इस बात को यकीनी बना रहा हूं कि हमारे कारकुन जो हैं वो पुरअमन रहे। मैं इस बात को यकीनी बना रहा हूं कि हमारे लोग इस रोड के ऊपर पुरअमन रहे थे आपके लोग। देखें, उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बन चुका हुआ है, JIT बन चुका हुआ है। प्लीज लाशों पे सियासत ना करें। जो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकते, इस्तीफे दे। और किसी मुल्क में ये होता तो इस्तीफा देता मिनिस्टर। बस आपको इस्तीफा दे। मजारी साहबा, ये जो PTI को, शीरी मजारी साहिबा, क्या आप राब्ते में हैं इमरान खान साहब के साथ, उस काफिले के साथ जो इस वक्त वहाँ पे फंसा हुआ है? इस वक्त की सिचुएशन जो है वो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये काफिला आगे बढ़ रहा है या अभी भी वहीं रुका हुआ है? नहीं, हमारा काफिला आगे बढ़ रहा है और हमने अपने वर्कर्स को अपील कर रहे हैं कि इनकी दहशतगर्दी से मत डरे और जिनको रोका था वो वापस आए और काफिले को ज्वाइन करें। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि अच्छा राना साहब, शीरी मजारी साहिबा ये कह रहे हैं कि काफिला आगे बढ़ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि आपकी इंतजामिया इस वक्त राब्ता जो है वो हमारा माफ कीजिएगा, राब्ता हमारा जो है वो मुनक़ता हुआ है। राना साहब आप हमारे साथ हैं? जी मैं हूँ, मौजूद हूँ। जी, राना साहब हमारे साथ है। शीरी मजारी साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। राना साहब आप ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ पर जो इंतज़ामिया है उससे यकीन दहानी ली है, उनसे बात की है, उनसे कहा है कि आगे इस किस्म का कोई हादसा जो है वो पेश नहीं आएगा। तो आपसे किसकी बात हुई है या आप हमें बताएंगे, क्या यकीन दहानी आपको कराई गई है और सूरत हाल अब वहाँ पे क्या है? आपका इस वक्त राब्ता तो है उन लोगों के साथ? देखिए, मेरा पूरा राब्ता है। इसके अंदर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने बैनर्स वगैरह फाड़े थे। और दूसरी मेरी बात को ना, इमरान खान साहब भी बैठे हैं, आप भी जरा 1 मिनट को, मैं पहले भी कह रहा था, सुन लीजिएगा। इस वक्त PTI जो है वो बुखलाहट का शिकार हो गया है। इन्होंने जो कहा था, दावे किए थे कि हम लाहौर से ही
10 लाख बंदा लेके निकलेंगे, लाहौर से मिनिमम हम 3 लाख लेके निकलेंगे। ये कहीं पर भी इस वक्त भी जो इनका क्राउड है वो 5-6 हजार से ज्यादा का नहीं है। लॉन्ग मार्च की नाकामी पर अब ये इल्जामात ढूंढ रहे हैं, ये वे आउट ढूंढ रहे हैं। मैं अभी शेख रशीद साहब और मैं एक चैनल पर मौजूद थे, वहां पर वो एक अब कह रहे थे कि जी ख्वातीन के ऊपर और बच्चों के ऊपर ये काम ना कभी हमने किया है ना इसके ऊपर। और एक चीज और, हम लोग इस वक्त इंतहाई ज्यादा जिस लॉन्ग मार्च को अदालतें जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे चुकी है, हमने फिर भी वहां पर इनको मौका दिया है। 144 के अंदर भी हमने इनको कहा है कि आप जाएं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनको भी ताकना चाहिए, इनको अपने वर्कर्स को भी समझाना चाहिए कि जो, और आप मीडिया आजाद है, जहां पे हम रोक रहे हैं मीडिया जाके दिखा दे कि यहाँ पे रोका हुआ है। हमने तो खुली इनको छूट दी हुई है। मैंने बहुत बार ट्राई किया।